جلالت تیری کی پیا وے ساڈا تے سب کچھ کیمرے چ ہی جاندا ہے پیا چک دیے پھٹے چکا دیتے یار شان جی شاہ جی رکیو 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 جائے اور اچھا ایسی 21 منٹ 8 سیکنڈ انہوں نے 21 منٹ ٹھیک ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم نے ایک پروگرام کل کیا تھا، مرزا جونیئر جیلمی کی ویڈیو آئی ہے، جسٹس فائز عیسیٰ نے جو قادیانی مربی مبارک احمد ثانی کے قادیانی ترجمہ قرآن کے تقسیم کرنے کا جو کیس تھا اور اس مجرم کو جو قاضی فائز عیسیٰ نے رہا کر دیا، تو اس کے اوپر مرزا جونیئر جیلمی نے ایک ویڈیو کی اور اس ویڈیو کا نام اس نے رکھا قادیانی ہی کیوں ہیں ٹارگٹ، اور نیچے لکھا ہوا ہے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ اٹینشن، اور ساتھ مرزا جونیئر جیلمی کی اور قاضی فائز عیسیٰ کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ یہ ویڈیو آ چکی ہے اور یہ ویڈیو جناب 2.5 گھنٹے کی ویڈیو ہے، اور اس کے اوپر ایک پروگرام میں کر چکا ہوں، اور یہ ابھی ہم دوسرا پروگرام کرنے لگے ہیں، اور وہی ویڈیو میں یہاں شو کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجئے سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اور پہلا جو ہمارا پروگرام تھا وہ ہوا تھا 21 منٹ اور 8 سیکنڈ تک، تو یہاں سے ہی ہم ویڈیو آگے چلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مرزا جونیئر جیلمی کیا کر رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑا ہے یہ مرزا جونیئر جیلمی، اور قادیانیوں کے ساتھ کھڑا ہے، اور بڑا ٹھوک بجا کے اس نے قادیانیوں کا دفاع کیا ہے۔ حالانکہ اتنی لمبی چوڑی ویڈیو بنتی نہیں تھی، بس 2 منٹوں کے اندر اگر اس کو اپنا مقدمہ پیش کرنا تھا 2 منٹ کے اندر یہ بات کر دیتا کہ فائز عیسیٰ نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے اور قادیانیوں کا ترجمہ قرآن بالکل غلط ہے، یہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ حالانکہ ہم پہلے بھی آپ کو ویڈیوز دکھا چکے ہیں کہ مرزا جونیئر جیلمی کے سے جب یہ سوال ہوا تھا مبارک احمد ثانی کے متعلق کہ وہ ترجمہ تقسیم کر رہا تھا، تو ایک قادیانی نے ایک پرچی لکھ کے دی کہ قادیانی ترجمہ قرآن تقسیم کر رہے ہیں تو ہمیں پڑھنا چاہیے کہ نہیں۔ اس کے اوپر بھی مرزا جونیئر جیلمی نے 40 منٹ کی ویڈیو لانچ کی تھی، اور اس کے اندر بڑا ٹھوک بجا کے اس نے کہا تھا کہ قادیانیوں کا ترجمہ قرآن بالکل ٹھیک ہے اور مسلمان مولویوں کے ترجمہ قرآن غلط ہے۔ تو حالانکہ اس وقت بھی
1 मिनट के अंदर जवाब बनता है कि नहीं कादियानियों का तर्जुमा कुरान ना पढ़ो। अभी ये दूसरी मर्तबा हुआ है कि मिर्जा जूनियर जेलमी ने 2.5 घंटे की वीडियो इस चीज के ऊपर लॉन्च की है और बड़ा जोर से उसने ये साबित किया है कि कादियानियों का तर्जुमा कुरान अगर गलत है तो तर्जुमा कुरान तो तुम्हारे भी ठीक नहीं है। मौलवियों, मुसलमानों, देवबंदियों, वहाबियों, सुन्नियों, तो शियों, हाँ जी, ये तर्जुमे तो कुरान तुम्हारे भी गलत है। आइए जी वीडियो देखते हैं। साहब के हाथ में बाज ने उनके खिलाफ की है। बहरहाल इसके ऊपर सबका कंसेंसस है कि मजहबी कार्ड के तौर पर इसको यूज ना किया जाए, लेकिन बाज उलमा फिर भी कर रहे हैं, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी। उनको भी लगाम देने की जरूरत है उनके बड़े उलमा की जानिब से, सीधी सी बात है। हाँ जी, मजहबी कार्ड का एक लफ्ज इसने पकड़ा हुआ है कि जो मजहब की बात करता है, जो खत्म नबूवत की बात करता है, तो लिहाजा देखो जी ये मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। ये असल में ये लफ्ज कादियानियों का इजाद करता है। कादियानियों ने ये इजाद किया मजहबी कार्ड, और उसको ये मिर्जा जूनियर जेलमी ने पकड़ लिया और बार बार इस वीडियो के अंदर इस लफ्ज को इस्तेमाल कर रहा है। जो हमने हिस्सा अव्वल पेश किया था उसके अंदर भी इसका ऑपरेशन किया था और आपको बताया था। जिन दोस्तों ने हमारा हिस्सा अव्वल इस वीडियो का नहीं देखा वो हमारे यूट्यूब के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर देख सकते हैं। तो ये मजहबी कार्ड का जो लफ्ज है ना, ये असल में कादियानियों का इजाद करता है। जो उन्होंने मुजाहिदीन खत्म नबूवत के रद्द के ऊपर ये लफ्ज निकाला कि देखो जी मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हैं, और वहां से ये लफ्ज लेके कुछ सियासतदानों ने भी इस्तेमाल करना शुरू किया कि जब खत्म नबूवत की कवानीन के अंदर तरमीम करने की लोगों ने कोशिश की, जो कादियानियों के एजेंट थे उन्होंने तरमीम करने की कोशिश की, तो मौलवी आगे से उठ खड़े हुए, सारे देवबंदी, वाबी, सुन्नी, शिया सब उठ खड़े हुए कि ये क्या हो रहा है। तो उस वक्त कुछ छुपे हुए कादियानी सियासतदानों ने ये लफ्ज बोला था कि ये देखो ये मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वही लफ्ज जो है ना ये अब मिर्जा जूनियर जेलमी बार बार इस्तेमाल कर रहा है। आगे बढ़ते हैं जनाब। तो बेसिकली ये पाकिस्तान में जो चिनाब नगर जिसे वो रब्वा भी कहते हैं, वहां एक खत्म नबूवत फोरम से ताल्लुक रखने वाले एक भाई हैं जो बंदी मकतब के, मोहम्मद हसन मुआविया नाम है उनका, हाफिज़हुल्लाह ताला। मेरी उनसे कल फोन पे भी बात हुई, कुछ चीजें मैंने उनसे डिस्कस की इसी FIR के हवाले से। उन्होंने इस हवाले से ये कंपेन 2000 बिल्कुल गप मार रहा है, झूठा तरीन आदमी है ये। मेरी भी बात हुई हसन माफिया से, यकीन मरे गप्पी आदमी है ये। कोई यदि गल कोई नहीं जी हुई हसन माफिया नाल, कोई गलबात कोई नहीं जी हुई। हसन माफिया लोगों को नहीं पता, वो जो है ना वो देवबंद के मोटे से मौलाना साहब अशरफी साहब, जानते हैं कोई बंदा? ताहिर अशरफी साहब को कोई जानता है? शाह जी वो उनके पास कोई मजहबी उमूर की वजारत है उनके पास, कोई है ना, उनके भाई हैं ये। और मेरे ये दोनों भाई ही मेरे दोस्त हैं। समझ आई कि नहीं? इतना गपिया है। ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਨੇ, ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਏ। ਦੇਖ ਲੈ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੜੇਗਾ? ਉਹ ਯਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੱਪੀ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਬਾਤ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੀ ਹੱਲ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ? ਆ ਸਭ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤੇ ਦੱਸ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੋਈ। शाह जी बस वो ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਧੇ ਮੁਕੱਲਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਵੱਡਾ ਗੱਪੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰੇ ਹਸਨ ਮਾਵੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਗਤ ਤੇ ਅਨਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਡਿੰਗਾ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸਨ ਹੈ, ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖ ਲੋ ਯਾਰ।
हद हो गई है यार। आगे सुनो जी। और 19 से शुरू की हुई थी कि वहां पब्लिकली भी कादियानियों के कुरान का तर्जुमा और वो जो हाशिया है तफसीर सगीर वो बांटी जा रही है। वो ऑलमोस्ट मैंने ये 2-3 दिन लगा के सारी पढ़ ली है। एलो जी, वो तफसीर सगीर 2-3 दिन ला के सारी पढ़ ली है जी। अल्लाह यार, ओए यार वो वेख्या जे भाई। शाह जी मदद की गल है वे 2-3 दिन ला के मैं अल्लाह दी कसम चुक के कहंदा जे मैं ना ओने एदी पीडीएफ भी अगर वेखी भी होए ना ते मैनू निमेथा बिठा लिया। शाह जी मज़े की गल है वे कि तुसीं यह देखना है कि 2.5 घंटे की वीडियो दे विच इस तफसीर दे किन्ने हवाले ने पढ़े ने, यह गौर करने वाली गल है। यार कोई एडा गप्पी अल्लाह दी कसम एडा वड्डा गप्पी यार की एदा कीता जाए यार हैं। 2-3 दिन ला के मैं सारी पढ़ छड़ी यार ते तुसीं आप ही हिसाब लाओ 2-3 दिनां दे विच ते कुरान ही अगर पढ़ना कोई शुरू करे ना वो नहीं पढ़ सकदा, उन्हें वो सारी पढ़ ही छड़ी है। ये तुसीं वेखो अकली तौर ते गल समझ आंदी है फिर हैं जी। ਇਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜੀਏ ਜਾ ਕੇ। झूठा तरीन आदमी। अगे सुनो। तफसीर भी और कुरान हकीम की उन्होंने आयात के जो तर्जुमे, जो क्रिटिकल आयात 150-200 मुझे देखनी थी वो मैंने देख ली, उसके अलावा और व्यू भी किया। मेरे नजदीक तो जो कादियानियों का तर्जुमा है कुरान का, जिन जगहों पे उन्होंने सही तर्जुमा किया हुआ है उससे तो हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन दर्जनों नहीं सैकड़ों जगह उन्होंने सराहतन कुरान हकीम की तारीफ की हुई है। अच्छा है लो जी, जिन आयतों का सही तर्जुमा किया उससे मुझे कोई इख्तलाफ नहीं। मैं चैलेंज किया सी, कल ही मैंने चैलेंज किया था, मैंने कहा कोई भी कादियानी आ जाए इसका एक आयत का तर्जुमा सही साबित कर दे, उसको मुंह मांगा इनाम दे। यही चैलेंज मैं मिर्जा जूनियर जेलमी को कर रहा हूं। निकले मैदान में, मेरा चैलेंज कबूल करे। एक आयत का तर्जुमा, सिर्फ एक आयत। यार ये देखो ये कितना बड़ा कादियानियत का मुहाफिज है। हाँ जी, गिन आती है इस तर्जुमे से गिन आती है। मैं सब कुछ बदल के रख दिए। आप मुझे बताइए कुरान पाक के अंदर मोहम्मद जो लफ्ज है ना वो चंद मर्तबा है। इसके अलावा पूरे कुरान के अंदर नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करने के लिए मुद्दस्सिर, मुज़म्मिल, तौहा, यासीन या ज़मायर इस्तेमाल किया का। जैसे कुल है, कुल के अंदर अंता ज़मीर है, तो अंता ज़मीर का मर्जे है नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पूरे कुरान पाक के अंदर ये ज़मायर कसीर हैं। तो जनाब कादियानियों का ये मरकजी अकीदा है कि ये लोग मिर्जे कादियानी को मोहम्मद समझते। आप मुझे बताइए वो तर्जुमा, तुम लफ्जों को देख रहे हो, कि लफ्जों का तर्जुमा ठीक ही है। जैसे कुल है, कुल का तर्जुमा है कि तुम कह दो, तुम फरमा दो। ये दो तर्जुमे बन सकते हैं। अगर अदबी तौर पे तर्जुमा करोगे तो तुम फरमा दो, आप फरमा दें, आप कह दें या तू कह दे, कोई सा भी तर्जुमा करो। यही तर्जुमा जब कोई मुसलमान करेगा तो वो मुराद लेगा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। यही तर्जुमा हूबहू यही तर्जुमा जब कादियानी करेगा तो वो मुराद लेगा मिर्जे कादियानी को। वो तर्जुमा सही कैसे हो गया?
تو لفظوں کو دیکھ رہا ہے کہ لفظوں کے اعتبار سے ترجمہ ٹھیک ہے. ایک بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی محترم بالکل سمجھ آئیے. گجر بھائی بیٹھے ہیں, گجر بھائی بات سمجھ آئی ہے کچھ؟ جی جی شاہ جی بالکل. او بھائی لفظوں کو تو نہیں ہے نا دیکھنا کہ لفظ ٹھیک ہیں جی. او بھائی ان لفظوں کے پیچھے کیا ہے وہ نہیں تم دیکھ رہے. عاجز نے یہ دیکھیں پوری کتاب لکھی ہے اس موضوع کے اوپر, قادیانی کلمہ, پوری کتاب. میں نے دسیوں حوالے دے کے یہ چیز ثابت کی ہے کہ, اور اصل کتابوں کے, قادیانی کتابوں کے سکین بھی آخر میں لگا دیے کہ قادیانی, مرزے قادیانی کو محمد سمجھتے ہیں. یہ قادیانی عقیدہ ہے. اچھا اگلی بات سنیں, یہ میرے پاس کتاب موجود ہے, دیکھیں بھائی, یوٹیوب پر بھی دیکھیں. کتاب ہے کلمۃ الفصل, اس کا ایک نام ہے ریویو آف ریلیجنز. یہ مرزا قادیانی کے بیٹے نے لکھی ہے یہ کتاب. مرزا قادیانی کے 2 بیٹے تھے بشیر نام کے, ایک کو ہم وڈا بشیرہ کہتے ہیں, ایک کو چھوٹا بشیرہ کہتے ہیں. یہ وڈا بشیرہ وہی ہے کہ جو قادیانیوں کا خلیفہ زانی ہے, 2 نمبر خلیفہ, جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا تھا. عبدالرزاق مہتا نے روحانی شکارگاہ کتاب کے اندر وہ ساری تفصیلات لکھی ہوئی ہیں, وہ کئی دفعہ میں نے پڑھ کے سنائی ہیں. تو یہ عبدالرزاق مہتا وہی ہے کہ خود یہ خلیفہ زانی جو تھا اپنی بیٹی کے پاس اس کو لے کے گیا تھا کہ تو اس کے ساتھ زنا کر, منہ کالا کر اس کے ساتھ. اچھا وہ ایک الگ کہانی ہے. تو یہ تو تھا وڈا بشیرہ. ایک چھوٹا بشیر ہے. اچھا وڈے بشیرے کو انہوں نے خلیفہ بنایا نا, حکیم نور الدین کے مرنے کے بعد خلیفہ بنایا تھا, اس کو خلافت ملی تھی. ایک یہ والا بشیر ہے, یہ چھوٹا ہے, اس کو بشیر احمد ایم اے کہتے ہیں یہ لوگ, یا قمر الانبیاء یعنی نبیوں کا چاند, انہوں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے. یہ وہی ہے جس نے سیرت المہدی کتاب لکھی ہے. کاشف تر گیا برات ڈگ دیے پی, آصف اگر برات ڈگ پئی تے تو پھر شروع کریں گا اتو ہی. جی شاہ جی جی. ہاں 173 کے اوپر یہ ہائی لائٹ عبارت دیکھ رہے ہیں, یہ ہائی لائٹ عبارت ہے. سنیے ذرا, کہتا ہے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے. اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی. مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہوا ہے. قرآن تو دنیا سے اٹھ گیا ہے. وہ والا قرآن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا تھا وہ دنیا سے اٹھ گیا ہوا ہے. کہتا ہے اسی لیے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ کو بروزی طور پر دوبارہ دنیا میں مبعوث کر کے آپ پر قرآن شریف اتارا جاوے. یہ قادیانی عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی دوسری مرتبہ آیا ہے محمد بن کے, یعنی یہ قادیانی عقیدہ ہے. میرا اس عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے بھائی. نقل کفر, کفر نہ باشدی کفر ہے, اشد کفر ہے. جو پہلے بھی آیا تھا وہ مرزا قادیانی ہی آیا تھا. یہ قادیانی عقیدہ ہے. اب یہ دوبارہ آیا قادیان کے اندر. پہلے وہ مکے میں پیدا ہوا, مدینے میں مدفون ہوا, اب دوبارہ آ گیا 1400 سال 1200 سال کے بعد قادیان کے اندر. تو پہلے محمد کے اوپر جو قرآن اترا تھا وہ دنیا سے اٹھ گیا ہوا ہے. اب دوبارہ محمد کو دنیا کے اندر اتار کے اللہ نے دوبارہ اس کے اوپر قرآن نازل کی ہے. یہ قادیانی عقیدہ ہے. اچھا اسی کتاب کلمۃ الفصل کا ایک اور حوالہ
मैं आपको सुनाना। एक 158, ये हाईलाइट इबारत, सफा 158। यार काशिफ की करना पे यार, सफा 158 देखें जी, सुने। पस मसीह मौद यानी मिर्जा कादियानी, पस मसीह मौद खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है जो इशाते इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में तशरीफ लाए, इसलिए हमको किसी नए कलमे की जरूरत नहीं। हाँ, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह कोई और आता तो जरूरत पेश आती। ये है कादियानी अकीदा। अब आ जाते हैं तफसीर सगीर की तरफ। भाई तर्जुमे को छोड़ दो, तर्जुमे को छोड़ो, तफसीर को भी छोड़ो, हाशिए को भी छोड़ो, सब कुछ छोड़ दो। ये जो अरबी के अल्फाज लिखे हैं ना, अरबी के, ये कादियानी अकीदा है, ये मिर्जे कादियानी के ऊपर नाज़िल हुआ है। ये अरबी कुरान, तर्जुमे वाला नहीं, अरबी कुरान ये वाला जिसका ये तर्जुमा किया गया, जिसको ये तफसीर सगीर कह रहे हैं या तफसीर कबीर कह रहे हैं, ये वाला अरबी अल्फाज जो है ना, ये मिर्जे कादियानी के ऊपर नाज़िल शुदा है। अब मुकदमा समझ आया आप लोगों को? तर्जुमा तो बड़ी दूर की बात है। अब मिर्जा जूनियर जेलमी ने ये सारी चीजें खा पी गई है, इसको बाला ताक रख के वो बात देखें क्या कर रहे हैं। वो चंद आयतें हैं, चंद आयतों के अंदर थोड़ा सा इतराज है, इख्तलाफ है, जी बकाया सब ठीक। अब सुन लिया आप लोगों ने? हाँ जी, है कोई बात करने वाला मिर्जा जूनियर जेलमी का फॉलोवर? यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर कोई है तो आओ सामने बात करो। ये मैं दूसरा प्रोग्राम कर रहा हूं इसकी, इस वीडियो के ऊपर। आगे सुनिए जी। और कुफरी अकीदे लिखे हुए उसमें, तफसीर के अंदर भी और तर्जुमे में भी उन्होंने उसको टेम्पर किया, इसमें कोई शक नहीं है। ये लादा बात है कि हमारे अहले सुन्नत में बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस और शिया, उन्होंने भी कुरान की तारीफ की हुई है, तर्जुमे में भी और तफसीर में भी। हाँ, अब देख लिया आप लोगों ने, बात कादियानी तर्जुमे की हो रही है तो साथ सुन्नी, शिया, वहाबी, देवबंदी आ गए हैं जी, उनके तर्जुमे कुरान। इस बंदे के आप देख रहे हैं कि ये आपको कौम को किस तरफ लेके जा रहा है। अब ये पूरी वीडियो इसके ऊपर इसने डाली है कि देखो, अगर कादियानियों ने तहरीफ की है, तहरीफ मानवी अगर की है, तो वो तो तुम लोगों ने भी की हुई है। ये बरेलवियों के सारे तर्जुमे फारग, वाबियों के सारे तर्जुमे फारग, देवबंदियों के सारे तर्जुमे फारग, शियों के भी तर्जुमे फारग। तो फिर तर्जुमा है कौन सा सही? सवाल है ये, सही कौन सा है? क्या सही वो है जो मिर्जा जूनियर जेल में बैठ के वो तर्जुमे कुरान की क्लासें लेता है, वो वाला तर्जुमा ठीक है? और उस तर्जुमे की अगर बात करनी है तो आ जाओ, ये लो, ये मिर्जा जूनियर जेलमी का ये रिसर्च पेपर मेरे सामने है, बल्कि मैं दिखाता हूं ये रिसर्च पेपर। यूट्यूब के ऊपर मैं स्क्रीन के ऊपर अभी दिखाने लगा हूं, ये देख लें जनाब, ये मिर्जा जूनियर जेलमी का तर्जुमा है। ये देखिए, पहला इसका रिसर्च पेपर है, रिसर्च नंबर 1, रसूलुल्लाह की आखिरी वसीयतें। ये देखिए जनाब, ये पहली चोरी ते पहला ही फा, सूरा अल हिजर आयत 9, ये नोट लिखा हुआ है कि अल्लाह ने उलमा और दरवेशों की तलीमात की बजाय अपनी वही कुरान और उसकी तफसीर यानी सही अहादीस की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है। सूरा हिजर आयत 9। ये है मिर्जा जूनियर जेलमी का तर्जुमा। मैं कहता हूं पूरे कुरान के अंदर क्या पूरी दुनिया की किसी हदीस का ये तर्जुमा नहीं है, और 1400 साल के अंदर किसी बाबे बुजुर्ग ने अपनी किताब के अंदर ये तर्जुमा तफसीर नहीं लिखा। तफसीर नहीं, तर्जुमा नहीं लिखा। तो ये है जी मिर्जा जूनियर जेलमी का तर्जुमा।
क्या हम मिर्जा जूनियर जेलमी के तर्जमे को माने? अच्छा जी, वीडियो की तरफ मैं लिए चलता हूं, आगे वीडियो जरा मुलाहजा कीजिएगा और इस बंदे की बगैरतियां देखते जाइएगा। ये किस किस जगह जाके डंडियां मारता है। इसको मैंने हर जगह से पकड़ना है, जिस नुक्कड़ से आएगा इसको मैंने पकड़ना है। दसना वा मैं आज ये भी दसना वा मैं भी दसना पाबंदी लगेगी सारा दिन वावांगा। तेनू भी मैं दसना सीधी जी गल है, कोई नहीं बचेगा। अच्छा लेकिन वहां तेनू भी पुत्र मैं जो लित्तर फेरने ने रे रब दा ना, तेरी वीडियो है अजे ते चलेगी, अजे 5-7 दिन चलेगी। तेरी इस एक वीडियो दे उत्ते तेनू मैं वो लित्तर फेरने ने रे रब दा ना। तू वे ते सही बंदा की ये जरा बल्क में गंदगी पाई जाती है, तो वो वहां पे बांट रहे थे अवामुन्नास में भी और क्लोज हलकों के अंदर भी। और मुझे जो उन्होंने जो इस एफआईआर को दर्ज करवाने वाले भाई हैं उन्होंने बताया कि 1500 से ज्यादा नुस्खे हमने रिट्रीव किए हैं मुसलमानों की मसाजिद से। जाहिर है वो लोग गिफ्ट ले जाते थे घरों में, तो तर्जुमे वाला कुरान कौन रखता है, पढ़ना ही नहीं होता किसी ने, तो वो जाके मस्जिद में रखवा देते थे। 1500 नुस्खे मुसलमानों की मसाजिद से, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस की मसाजिद से वो निकले हैं। लिहाजा ये मामला इतना सादा नहीं है कि वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी। अच्छा, इस बंदे की इस स्टेटमेंट सुनने से पहले मैं वो वाली स्टेटमेंट इसकी आपको सुनाता हूं जिसके अंदर ये कहता है, तस्लीम करता है कि कादियानियों के तर्जुमे कुरान बिल्कुल ठीक है। यही कादियानी मुरब्बी मुबारक अहमद सानी जब पकड़ा गया था तो एक कादियानी ने एक चिट्ठी लिख के इसको दी थी कि भाई बाहर लोग कादियानी तर्जुमा कुरान तकसीम करें, वो हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं। उसके ऊपर इसका कादियानी कुरान इसका रिप्लाई देखिएगा। और ये एक कितनी जनाब इसने 40 मिनट की वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, ये सुने जरा। कादियानी कुरान बांट रहे हैं तर्जमे वाला, इसलिए कुरान तर्जमे से ना पढ़े। एगड़ी इस्लाम की खिदमत है। कुरान का तर्जमा अगर कोई गलत करता है, वैसे तो मैं इस बात के साथ एग्री नहीं करता हूं, कुरान के तर्जमे में कोई फर्क डाल ही नहीं सकता। सुन लिया, कुरान के तर्जुमे में कोई फर्क डाल, हालांकि सवाल कादियानियों के तर्जुमे का हो रहा है। वो कह रहा है कोई, मैं तो इस चीज को मानता ही नहीं हूं कि कोई कुरान के तर्जुमे के अंदर फर्क डाल सके। सुन लिया आप लोगों ने, आगे सुनिए। कहेंगे कि कुरान तर्जमे से ही पढ़ना छोड़ दें, किड्डा बड़ा रोंद मार दो यार, पेट से आप आके बैठ गए हो, ये आपकी बेसिक नीड है कुरान तर्जमे से पढ़ना, तो ये 2 नंबरी छोड़ दें। और फिर मैंने देखे बारहा ये बात की है, आप उनसे भी जाके कुरान का तर्जमा करवाएं ना, अगर उनको उर्दू या इंग्लिश आती हो, वो वही तर्जमा करेंगे जो कुरान की अरबी लिंग्विस्टिक का बनता है। तर्जमे में कौन कैसे बदल सकता है, मुझे बताएं। तो ये किस तरह कह सकते हैं आप कि तर्जमे बदल गए? 8 ट्रांसलेशंस ऑफ कुरान और उलमा का धोखा, ये बेसिकली रंग में भांग डाल रहे हैं। ये चाहते ही नहीं आप कुरान पढ़ें, और ये कुरान के दुश्मन है कि जी वो तर्जमे कौन सा तर्जमा बदला है। इवन ये जो कादियानियों के बारे में भी कर रहे हैं ना, आपको स्पेसिफिकली कोई पोर्शन लेके आए कि जिसके अंदर उन्होंने तर्जमे में फर्क डाल दिया हो। और माजरत के साथ एक ही बड़ा हमारा उनसे इख्तलाफ है ना खत्म नबूवत पे, उसमें उन्होंने तर्जमा ठीक किया हुआ है, आपके उलमा ने गलत किया हुआ है। सुन लिया, इसके अंदर 2 इसने ड्रामे किए, 2 ड्रामे किए हैं। एक ये कि कादियानियों के साथ हमारा एक ही इख्तलाफ है बड़ा, वो ये खत्म नबूवत के ऊपर, हालांकि इससे बड़े बड़े इख्तलाफ हैं, बड़े बड़े इख्तलाफ हैं। तो एक तो ड्रामा वो ये कर गया, दूसरा ये वो ड्रामा कर गया कि कादियानियों ने तर्जुमा ठीक की है कुरान का, तुम्हारे मुसलमान उलमा ने गलत की है। अब कादियानियों का तर्जुमा कुरान जब ठीक है, ये पहले फतवा दे चुका है इसके ऊपर, उसकी 40 मिनट की वीडियो मौजूद है, तो अब तो बोलना बनता ही नहीं था उसका। ठोक बजा के कहता ना कि कादियानियों का तर्जुमा कुरान ठीक है, क्योंकि ये मुबारक जब पकड़ा गया था तो उस वक्त ये सवाल कादियानी ने ये लिख के दिया था। ये देखे ड्रामा क्या कर रहा है ये। हाँ जी, देख रहे हैं आप, इसके ड्रामे देख रहे हैं आप लोग। आइए जी उस वीडियो की तरफ अब वापस आते हैं। के अंदर इसकी तबलीग कर रहे थे, बल्कि अवामुन्नास जो मुसलमानों की है उन तक भी ये तफसील पहुंची हुई थी। बाकी गुमराही इससे कोई नहीं फैलनी, उसकी वजह यह है कि मुसलमान तो अपना तर्जुमा नहीं पढ़ते, इनका किसने पढ़ना है। हाँ हेलो जी, गुमराही को नहीं फैलनी जी। देखिए जी अग्गू दंडियां कट दे जे पे, ते कोई एक बंदा भी नहीं कि लावे लित्तर ते मारे दे मुंह थे, वो नहीं हो, क्योंकि अगे बैठे उंज दे बंदे ने एथीस्ट कादियानी राफजी
ਇੰਜ ਦੇ ਚਰਚੀਏ ਤੇ ਮਵਾਲੀਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਜੇ ਪਏ, ਉਹ ਦੰਦੀਆਂ ਕਢਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ नहीं गुमराही नहीं है, देना कोई फैल नहीं। देख रहे हैं आप लोग, कादियानियों का दिफा कर रहा है ये है। मजनू ना बन जाओ मुसलमानों, अक्खा खोलो, मजनू ना बनो, अक्खा खोलो। वो सानू कोई टेंशन नहीं, बेफिक्र वो। हाँ। अच्छा ये एक छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात कर गए। वो आपको मैसेज ये दे गया कि कादियानी तर्जुमा कुरान अगर तकसीम हो और कोई पढ़ भी ले, उससे गुमराही नहीं फैलती, कुछ नहीं होता, टेंशन को नहीं सानू। और ये जनाब ये पूरे मुकदमे को ये कादियानी गोद के अंदर डाल गए और आप लोगों को पता ही नहीं चला। ये दोबारा मैं पीछे से वीडियो करता हूं, दोबारा सुनिएगा। पहुंची हुई थी। बाकी गुमराही इससे कोई नहीं फैल रही, उसकी वजह यह है कि मुसलमान तो अपना तर्जुमा नहीं पढ़ते, इनका किसने पढ़ना है। हाँ वो सानू कोई टेंशन नहीं, बेफिक्र वो। हाँ ठीक पहुंची हुई थी। बाकी गुमराही इससे कोई नहीं फैल रही, उसकी वजह यह है कि मुसलमान तो अपना तर्जुमा नहीं पढ़ते, इनका किसने पढ़ना है। हाँ वो सानू कोई टेंशन नहीं, बेफिक्र वो। हाँ सुन लिया आप लोगों ने, आगे सुनिए। तो लेकिन बहरहाल एक गुमराही तो फैल रही थी, तो उन्होंने इस मुकदमे को उठाया। यार की नमूना है अल्लाह दी कसम। अच्छा जी एक चीज और एक नाल ही तरफ कहंदा गुमराही है तो कोई नहीं फैलनी, थानू कोई टेंशन नहीं। नाल कहंदा बहरहाल गुमराही तो फैल रही थी। यार की ये होया है? शाजी इसने ना इतराज़ किया कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने वो आयत कुरान पाक की जो है ना वो पेश की कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। ये आयत पेश करके तो काजी फायज़ ईसा ने कहा है कि कुरान को कौन बदल सकता है। यही आयत इसने भी पढ़ी है और पढ़ के तो इसने काजी साहब पे इतराज़ किया है कि काजी साहब इसका मतलब है फिर बंदा हीला कोई ना करे। और अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है जी वो जो है ना उनके तर्जमे वो तर्जमा गलत कर ही नहीं सकते, हमें कोई फिक्र ही नहीं है। यानी कि अपनी की हुई बात के साथ खुद ही इख्तलाफ कर रहा है, खुद ही कर रहे हैं। एक तरफ कह रहा है कि हिला करना चाहिए, अगर नबी अलैहिस्सलाम की नामूस पे को हमला करता है, कुरान के तर्जमे गलत करता है तो हमें हिला करना चाहिए। काजी साहब पे इख्तलाफ कर रहा है कि उन्होंने ये आयत क्यों पेश की है, और ख़ुद यही आयत इसने पेश की है जब इससे किसी ने सवाल किया कि इसराइल के अंदर यहूदियों ने कुरान पाक छापा है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं। तो यही आयत इसने पेश करके कहा जी वो छापते रहे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। कहता छापते रहे, अल्लाह ताला की ज़ात ने तो ख़ुद इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया है। अब यही आयत पेश करके तो काजी फायज़ ईसा साहब पे इतराज़ कर रहा है कि जनाब ये आपने गलत आयत जो है ना पेश की है, हमें तो हिला करना चाहिए। यानी कि इसकी अपनी बातों के अंदर तजाद है। हाँ चले आगे वो वीडियो आती है तो देखते हैं ये क्या क्या करता है। इसकी पूरी वीडियो को हम सुनेंगे और ऑपरेशन करेंगे हम इंशाल्लाह। 2019 में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए एप्लीकेशन दी, लेकिन वही कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा था, उसको मुख्तलिफ कानूनी मामलात में डालते रहे, मुख्तलिफ कमेटियां बनी, करते करते उस बंदे ने इसमें कामयाब हो गया एफआईआर कटवाने पे। 2019 से 22 हो गया, ठीक है जी, एफआईआर कट गई। अब एफआईआर के अंदर बकायदा लिखा हुआ है कि इसके ऊपर जो मुकदमा है वो कुरान एक्ट 2011 की रोशनी में काटा जाए। 2019 में एफआईआर के लिए एप्लीकेशन फाइल हो रही है और एफआईआर काटी जा रही है 2022 में, लेकिन फिर भी उसमें लिखा हुआ है कि 2011 का जो कुरान एक्ट है उसके मुताबिक जो है ना वो ये मुजरिम है बंदा जो भी ये सारा कुछ कर रहे हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये पहुंची है, निचली सारी अदालतों से उसकी जमानत कैंसिल हुई, उन्होंने तस्लीम किया और वो अभी तक कायम है कि मैं तकसीम करता हूं, वो अपने जुर्म से भागा भी नहीं है। ज़ाहिर है उसका ताल्लुक कादियानी अक़लियत से। अल्टीमेटली जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बजाय ये कि एफआईआर को जरा गौर से पढ़ते कि उसमें लिखा क्या हुआ है, वो किसी और तरफ ही चल पड़े और उन्होंने कहा जी ये तो देखें एफआईआर 2022 में काटी गई है और जो कानून है वो तो बाद में अप्लाई हुआ है, इसके ऊपर मसला 2019 का है, यानी जुर्म 2019 का है। अगरचे एफआईआर 2022 में काटी गई, लेकिन जो कानून है वो 2022 का है और 2022 का कानून 2019 के जुर्म पर अप्लाई नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात इतनी सादा नहीं है। 2019 में जो एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दी गई है उसमें लिखा हुआ है कि कुरान एक्ट 2011 के मुताबिक उसे सजा दी जाए। लिहाजा 2019 से भी 8 साल पहले का वो कानून है और ये प्ली ले रहे हैं 2022 के कानून की। भाई 2011 के कानून की वो प्ली ले रहे थे और उस कानून में 3 साल सजा थी, 2022 में तो वो सजा बढ़ के 9 साल हो चुकी हुई है। इन्होंने कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली
और कहा कि जी जुर्म हुआ 2019 में, कानून बना 2022 में। ना, कानून 2022 में नहीं बना, कानून 2011 का है और एफआईआर के ऊपर लिखा हुआ है कोई। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦਿਆ ਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀ ਰਿਸਰਚ ਮੇਰੀ ਤਹਿਕੀਕ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਸਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ भी पढ़े ना, उसे पता चल जाएगा। और फिर कहा कि अच्छा वो भी मान लिया जाए, तब भी 6 महीने इसकी सजा बनती है। ना, 6 महीने नहीं बनती, 3 साल सजा है 2011 के केस में। और 6 महीने निकाले हैं 1932 के अंग्रेजों के जमाने के एक्ट के, और एफआईआर में 1932 लिखा ही नहीं हुआ, 2011 लिखा हुआ है। और फैसले में कह रहे हैं कि जुर्म 2019 में हुआ और कानून बना 2022 में। 2022 में कानून नहीं बना, कानून तो 2011 का है। और जो जनरल कानून है वो तो हमारे आइन के अंदर मौजूद है, वो तो उससे भी पहले का है। और 1993 का तो तफसीली फैसला है जो प्रेस। ਉਹ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1974 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੈ ਆਸਫ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। जी जी सुनी हुई है उस्ताद, मतलब स्टेटमेंट इसकी सुनी हुई है। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਫਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। पुलिस में इन्होंने फिर बात शाह जी माना। जी 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 मैं कह रहा था जब जब मुसलमानों के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आया है ना, चाहे वो कुरान की जो है वो बेहुरमती हुई हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए गए हों, या नुपुर शर्मा जो थी वो इंडियन चैनल्स के ऊपर उसने बैठ के तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शातमियत उसने की हो, या दीगर और भी जब जब मुसलमानों के दिल दुखे हैं ना, तो इसने उनको जो है वो यानी बताने के मुसलमानों को कि भाई नामूस के ऊपर खड़ा होना चाहिए। इसने ये बात नहीं की, इसने कहा जी ये दरअसल जो है ना इसके ज़िम्मेदार मुसलमान है। ये जो शादी हो रही है, कुरान की बेहुरमती हो रही है, ये मुसलमान क्यों एहतजाज कर रहे हैं? इनको एहतजाज नहीं करना चाहिए। इनको अपने घरों में बैठ के ना तो सिर्फ एक ट्वीट कर देनी चाहिए, एहतजाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी वीडियो आगे सुने जी। समझ रहे हैं ना क्या दोनों बड़ी हुई है? तो वो 6 महीने वाली सजा नहीं है, 2011 के एक्ट के तहत 3 साल की सजा है, और 2022 के तहत 9 साल की है। चलो 2022 वाली ना दो, लेकिन उस सबको ओवरलुक किया और फिर रुख दूसरी तरफ फेर दिया कि जी पाकिस्तान में अकलियतों के हुकूक होने चाहिए। बिल्कुल अल्लाह के फजल से सुप्रीम कोर्ट की तो आप जरूरत हुई है ना ये बात करने की। मैं ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਛੜਿਆ ਹੈ ਅਜੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ, ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਇਆ। ਸੁਣੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਹਿ ਕੇ। पाकिस्तान में अकलियतों के हुकूक होने चाहिए। बिल्कुल अल्लाह के फजल से सुप्रीम कोर्ट की तो आप जरूरत हुई है ना ये बात करने की। मैं तो निहत्ता पिछले 10-12 साल से ये राग लाप रहा हूं कि कादियानियों से हमारा इल्मी इख्तलाफ अपनी जगह, हम उन्हें काफिर समझते हैं, ये बात अपनी जगह, लेकिन उनकी प्रोसिक्यूशन नहीं होनी चाहिए। उन्हें हम प्यार मोहब्बत से इस्लाम की तरफ बुलाएं ताकि उनकी नस्लें इस्लाम में आ जाएं। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸਟੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਯਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋ ਕੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੇ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਸਲਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਮਾਨ ਤਸੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਵੈਸੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਤੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤਗਿਰੀ। ਜੀ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਭਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਤੇ ਜਦਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, कभी नहीं देखा, खुदा की कसम हमने कभी नहीं देखा कि कभी पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर पूरी दुनिया के अंदर कभी किसी मुसलमान ने किसी कादियानी के घर की मक्खी तक मारी हो। कादियानी को मारना तो बड़ी दूर की बात है,
और थप्पड़ तक नहीं मारा, जान से मारना बड़ी दूर की बात है, थप्पड़ तक नहीं मारा। आज तक हमने नहीं, यकीन जाने 25 साल हमें भी हो गया ये काम करते हुए, आज तक हमने नहीं देखा। और ये बाहर की दुनिया के अंदर असाइलम लेते हैं ये कह के कि देखो जी हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं, सितम हो रहे हैं, और ये पाकिस्तानी हमें जो है ना कत्ल कर रहे हैं, तो लिहाजा हमें सियासी पनाह दो, असाइलम दो। तो ये हम दिन भर बैठ के कादियानियों की इसी बात का रद्द करते हैं कि ऐसा तो है ही नहीं, कोई है सबूत तो लेके आओ। आज आके तकरीबन 4 या 5 कत्ल मैंने देखे हैं कादियानियों के मुख्तलिफ वक्तों के अंदर होते हुए, वो भी जनाब कादियानियों ने खुद करवाए, उसके सबूत हमने फराहम किए, इसके ऊपर बड़े बड़े प्रोग्राम कर चुके हैं, ज़िया रसूल कर चुका है, आका का गुलाम जो जिसकी आईडी है, मैं कर चुका हूं, हमने सबूत दिए, प्रूफ दिए। अब देखें वो कोई कादियानियों की बात को ये रिपीट कर रहा है कि परसिक्यूशन ना करो, हाँ जी, तो इल्मी बात करो, इल्मी केड़ी इल्मी भाई। वो मिर्जा कादियानी टट्टी मूतर करदा, वो लटरीन च मर गया, वो कहंदा सी हम मक्के में मरेंगे या मदीने में, हुण टट्टी मूतर ते केड़ी असी इल्मी डिबेट करिए इन्हां दे नाल, दस ना है। वो देखे कादियानियों का दिफा, यहां पर भी कादियानियों का दिफा, इल्मी बात करें। वो कौन सी इल्मी बात यार, बता तू बता मिर्जा जूनियर जेलमी, केड़ी इल्मी गुफ्तगू करिए है। बात तो वो ही है कि मिर्जा कादियानी पूरी जिंदगी ज़िनाकारी करता रहा, शराबे पीता रहा, और वो कहते हैं जी नहीं हमारे साथ आके इजराए नबूवत की बात करो, इल्मी बात करो, खत्म नबूवत की बात करो, हमारे साथ बात करो, वफातो हयाते मसीह की बात करो, इल्मी बात करो, कुरान से बात करो, हदीस से बात करो। हम ये कहते हैं कि देखो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अगर बिलफर्ज मुर्दा साबित भी हो जाएं, कुरान और हदीस से साबित हो जाए, तो मिर्जा कादियानी सच्चा कैसे होगा। और मिर्जे को कैसे सच्चा करोगे, वो तो पूरी जिंदगी ज़िनाकारियां करता रहा, शराब नोशियां करता रहा, उसको सच्चा कैसे साबित करो। कादियानी आगे से ये कहता है नहीं हमारे साथ इल्मी बात करो, वही बात मिर्जा जूनियर जेल में रिपीट कर रहे, दोबारा सुनेंगे। अपनी जगह, लेकिन उनकी प्रोसिक्यूशन नहीं होनी चाहिए। उन्हें हम प्यार मोहब्बत से इस्लाम की तरफ बुलाए ताकि उनकी नस्लें इस्लाम में आ जाए। इल्मी इख्तलाफ करना चाहिए। ये जो इख्तलाफ है कि जी फलां टॉयलेट में मर गया, फलां को ये हो गया, फलां ये हो गया, ये कोई इल्मी इख्तलाफ नहीं है। हाँ जी, ये कोई इल्मी इख्तलाफ नहीं है जी। टॉयलेट में मर गया, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਟੱਟੀ ਚ ਮਰਿਆ। देख लें आप लोग, हाँ टट्टी की बात ना करो उसकी, वो खुद कह रहा है ये मेरा मौजज़ा है, दिन और रात में 100 दफा टट्टी मूतर करना ये मौजज़ा है मेरा। वो हदीस है एक मुस्लिम शरीफ की कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमान से नजूल करेंगे तो 2 जर्द चादरें पहने हुए नजूल करेंगे। तो मिर्जा कादियानी कहता है किसी ने सवाल किया था कि तू कहता है जी मैं ईसा हूं तो तेरी वो 2 जर्द चादरें कौन सी हैं। तो मिर्जा कादियानी कहता है असल में जर्द चादरों से मुराद होती है बीमारी। मेरी 2 जर्द चादरें मेरी 2 बीमारियां, एक मेरी बीमारी मेरे जिस्म के ऊपर वाले हिस्से में है कि मुझे मराक के दौरे पड़ते हैं, पागलपनी के दौरे पड़ते हैं। एक मेरी जर्द चादर तो वो है, और दूसरी जर्द चादर जो है वो ये है कि मुझे दिन और रात में 100 दफा टट्टी मूतर आता है। और जिसको मिर्जा खुद कह रहा है अपना मौजज़ा और टट्टी मूतर वाली सरकार, तो मिर्जा जूनियर जेल में कहता है नहीं 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 उसकी बात ना करो, वो इल्मी बात नहीं है, वो इल्मी बात नहीं है। हाँ जी, और कौन सी बात करें जी, है जो उन्होंने झूठी नबूवत क्लेम की है कुरान और सुन्नत से, उनके सामने दलाइल रखे गए और फिर अधूरे दलाइल नहीं। हाँ लो जी, देखा मतलब मिर्जे की टट्टी मूतर शराब नोशी ज़िनाकारी की बात ना करो। हाँ वो झूठी नबूवत जो क्लेम की है ना, उस कुरान दी से बात करो, कुरान दी से बात करो। यही बात कादियानी कहते हैं।
यही बात तो कादियानियत में कहते हैं। बताइए दोस्तों, यही मिर्जा जूनियर जेल में कह रहे हैं। ये दोनों आपस में भाई भाई हैं। उनके पास आखिरी सहारा पता है आपको क्या है? चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह। ये ले जी, आ गया आगे खोती बोर्ड थले। आखिरी सहारा उनके पास ये है, चिश्ती रसूलुल्लाह, अथानवी रसूलुल्लाह। तो ये अब मैं आपको कहानी सुनाता हूं। ये एक दफा हुआ है, सिर्फ एक दफा। मैंने जैसा कि आपको कहा कि 25 साल मुझे सोशल मीडिया पे हो गए हैं काम करते हुए। ये मिर्जा जूनियर जेल में तो जम्मिया भी नहीं सी उदू। हाँ जी, उदू लंगोटा बंदा सा जे एदी मां इनू, ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। अच्छा जी, कादियानी मुरब्बी मीर सलीम माइंड रोस्टर, इसके साथ मेरा मुनाजरा हो रहा था। ये मैं कैमरा ऑन कर लूं जरा। ये जो मेरी किताब है, ये किताब लिखने की जो वजह बनी थी, ये किताब, ये वजह, इससे पहले मेरा एक मुनाजरा हुआ था। वो था मीर सलीम माइंड रोस्टर के साथ मुनाजरा हुआ। बात यही हो रही थी कि मिर्जा कादियानी अपने आप को मोहम्मद कहता है और अपने आप को अल्लाह कहता है। वो कहता है रई तू नहीं फिल मनामी आइन अल्लाह व तयक्कन तू अन्ना नहीं हुआ, कि मैंने अपने मनाम में अपने आप को अल्लाह बने देखा और मैंने यकीन कर लिया कि मैं अल्लाह ही हूं। फिर मैंने इस कायनात को मैंने तख्लीक की है। एक उसका क्लेम ये है कि अल्लाह भी मैं है, एक उसका क्लेम यह कि मोहम्मद भी मैं। इस चीज पे बात हो रही थी। तो सोशल मीडिया की दुनिया के अंदर पहली दफा, मैं चैलेंज कर रहा हूं, पहली दफा सोशल मीडिया के ऊपर कहीं दूर दूर तक ये मौजू था ही नहीं। पहली दफा उस डिबेट के अंदर मीर सलीम माइंड रोस्टर ने चिश्ती रसूलुल्लाह वाली इबारत पेश की थी। तो उसको, वो जूतियां मैंने रसीद की थी, वो जूतियां रसीद की थी रे रब दा ना। अब हुआ ये कि ये पहली दफा हवाला उसने पेश किया था। 2-4 दिन बाद ही, या जब वो अपलोड हुआ वो डिबेट हमारी, तो कुछ दिन बाद मिर्जा जूनियर जेल में ने अकेडमी से ये आवाज बुलंद की थी। अब समझे, ये पूरी इसकी डिटेल, पूरी तारीख मैं आपको बता रहा हूं। नए दोस्त हैं कई, उनको नहीं पता साहब का क्या हुआ, ये पूरी डिटेल आपको बता रहा हूं। ये पहली दफा कादियानी के मुंह से ये निकला था सोशल मीडिया की दुनिया के अंदर। सोशल मीडिया की दुनिया के अंदर मैं बात कर रहा हूं। तो उसके बाद, मेरी डिबेट के बाद, मिर्जा जूनियर जेलमी ने ये आवाज बुलंद की थी कि तुमने तो अपने बाबों के कलमे पढ़ाए हुए, तुम्हारे बाबों ने कलमे पढ़वाए हुए। तो ये, क्योंकि इसके कादियानियों के साथ लैक स्लैक है, ये तो हम शुरू दिन से कह रहे हैं। तो माइंड रोस्टर के ताल्लुकात थे मिर्जा जूनियर जेलमी के साथ, और इनके बड़े बड़े मुरब्बियों के ताल्लुकात मिर्जा जूनियर जेलमी के साथ। उन्होंने इसको ये शुरली लिख के दी कि चूंकि ये उनका ही बंदा एजेंट है, कादियानी एजेंट है, ये जो मुसलमानों के निकाब के अंदर बैठा हुआ है। तो इसने उनके काशन पर, काशन उन्होंने दिया था कादियानियों ने, उनके काशन के पर ये फिर शुरू किया था, ये पूरी गेम इसने शुरू की थी। तो ये कुछ तरीकी हकायक थे जो मैं अर्ज कर रहा था। आइए जी वीडियो आगे सुनते हैं। उधर आके ना इनकी भी आप समझ लें खोती मार जाती है, बरेलवी देवबंदियों की भी, अहले हदीस की भी मार जाती है, क्योंकि एक दूसरे के बेनिफिशियरी हैं। वहां ये गूंगे शैतान मान जाते हैं और वहां पे सिर्फ हम बोलते हैं दलेरी से। और अच्छा जी, ये सिर्फ एक दफा हुआ है, उसके बाद कभी भी नहीं हुआ। उसके बाद अगर कोई पेश कर रहा है तो वो मिर्जा जूनियर जेल में ही पेश कर रहा है। तो ये कह रहा है जी कादियानी तो करते ही ये हैं। यार आसफ मौजूद है आप? आसफ, काशिफ मौजूद है?
ਉਹ ਬਰਾੜ ਵਾਲਿਓ ਕਿੱਧਰ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ? ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਾੜ ਡਿੱਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਹੈਲੋ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਬਰਾੜ ਚੱਲੇ ਤੇ ਤਦ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਬਰਾੜ ਖੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਂਝ ਕਹਿ ਉਹ ਭਾਈ ਬਰਾੜ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ शाह ਨਹੀਂ। जी ਜਾਂ कॉल आ गई थी मदर से तो जी शाह जी अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਆਸਫਾ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਿਹਾ ਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਬਾਰਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਕਿ चिश्ती रसूलुल्लाह ਤੇ ये वो? शाह जी अभी टिकटॉक पे आए हुए हमें 5-6 महीने हो गए हैं और हमारी रिकॉर्डिंगें सारी पड़ी हुई हैं यूट्यूब के हमारे चैनल जो है ख़त्म नबूवत टाइम्स, उस ख़त्म नबूवत फोरम के ऊपर तमाम की तमाम रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं। कोई एक मुनाजरे के अंदर भी उन्होंने कोई ये इस तो तरह कह रहा है कि कादियानी करते ही ये हैं। ये दोबारा सुने जरा। बस आखिरी सहारा पता है आपको क्या है? प्री नबूवत क्लेम की है कुरान और सुन्नत से, उनके सामने दलाइल रखे गए और फिर अधूरे दलाइल नहीं। हाँ, उनके पास आखिरी सहारा पता है आपको क्या है? चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह। वो कह रहा है आखिरी सारा कादियानियों के पास यही है, हालांकि है ही नहीं ऐसा, हमने तो कभी नहीं देखा। कोई कादियानियों की किताब ही दिखा दो। चलो उनकी वेबसाइट मौजूद है alislam.org, कोई दिखा दो कि उन्होंने कोई इस किस्म का कोई चीज, हाँ जी, कोई लिखी हो। उनकी पॉकेट बुक मौजूद है जिसके अंदर उन्होंने बड़े जवाबात देने की कोशिश की है, उसके अंदर से दिखा दो। उधर आके ना इनकी भी आप समझ लें खोती मर जाती है, बरेलवी जो बनियों की भी, अहले हदीस की भी मर जाती है, क्योंकि एक दूसरे के बेनिफिशियरी हैं। वहां ये गूंगे शैतान बन जाते हैं और वहां पे सिर्फ हम बोलते हैं दलेरी से, और हमारे इस प्लेटफॉर्म की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों कादियानी मुसलमान हो चुके हैं। यहाँ मुझे मिल के गए हैं पूरी पूरी फैमिलीज के साथ। अल्लाह के फजल से मैंने कभी अपने साथ बिठा के एक वीडियो भी नहीं बनवाई चंदा बटोरने के लिए। हेलो जी, सुन लिया जी? हेलो जी, पूरी पूरी क्यों फैमिलियां इन्हें कीतियां जी मुसलमान है। शाह जी ਉਹ ਤੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਰਜਮਾਨ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਅਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਪੂਰੀ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਹੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ कादियानियत ही शाह जी रजी मरबी जो है वो चले जाए, कोई भी दोस्त उसके चैनल पे चला जाए, वो तमाम की तमाम वीडियोस उसने इसी की लगाई हुई हैं। वही कादियानी पूरी कादियानियत तेरी है। तू क्या कह रहा है दसियों? और मैं कहना पूरी कादियानियत ही तेरी है। ओदा नाम तू अगर रख छड़िया कि कादियानियत नूं मैं मुसलमान कीता ते हां तू कह ले। शाह जी वो जो हारिस सुल्तान है, जो दुनिया का बदतरीन जो है वो मुल्हिद है, जो बदतरीन शातिम है वो, अब इसकी वीडियोस लगा के भंगड़े डाल रहा होता है कि देखे जी मुसलमानों की जनाब, ये देखे जी कैसी जो है ना ये बेइज्जती कर रहा है ये। हाँ जी ऐसा ही है जी, बस आगे सुने जी। क्योंकि हमने कोई ये चंदा बटोरने का प्लेटफॉर्म तो नहीं रखा ना, हमारी कोई चंदा बुक है ना कोई मस्जिद है, नमाजें आपके पीछे पढ़ते हैं, चंदे आपको देते हैं। और चंदे पुत्र चंदे ਲੈਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਜੋ ਚੈੱਕ ਜੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਂਝ ਜੋ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਸਰੂਰ ਦੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵਹਾ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਰੂਰ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ੈਮ ਹੈ मिर्जा जूनियर जेल में। और आपका हाल ये कि आप खत्म नबूवत के नाम पे चंदे खाते हो और जुर्रत नहीं है चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह के ऊपर बात कर जाओ। देखो मैंने तुम्हारे हर पब्लिक के फर्द तक ये तुम्हारे बड़ों का जुर्म पहुंचा दिया। अच्छा जी, बात हो रही है कादियानी तर्जमे की, तो उधर आ गया चिश्ती रसूलुल्लाह जी। अब देवबंदी भाभी के ऊपर ये शुरू हो गया है, गटर का ढक्कन खुल गया जनाब। अब देखे अंदर से क्या क्या निकलता है। शुरू हो गया भाई, चल भाई भौंकना शुरू कर। यही वजह है कि वो पब्लिक तुम्हारे बुजुर्गों को छोड़कर रसूलुल्लाह के साथ अटैच हो रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे इस प्लेटफॉर्म की बरकत से। और अभी भी अगर तुम बाज नहीं आओगे तो ये कोई चंद एक भेड़े अगर बच गई हैं वो भी इंशाल्लाह अंतरिक तुम्हें छोड़ देंगी। ये 2 नंबरियां छोड़ दो। तो
अच्छा यार, यकीन जानो, इसके ना चेहरे के असरात देखो, ऐसे जैसे यकीन जान कि पूरी दुनिया ही इसके इशारों पे चल रही है, या मतलब कोई बहुत बड़ा कोई स्कॉलर या बहुत बड़ा जिसने कोई डिक्टेटर होता है, इस किस्म का इसका रवैया सेम मिर्जे कादियानी की तरह। मिर्जा कादियानी भी ऐसे ही कहता था, वो आकड़ के जनाब, वो कहता था ईसाइयत को मैंने खत्म कर दिया है, मैंने कसरे सलीब कर दिया हुआ है, द डैमेज हैज बीन डन, ईसाइयों की दुकानें बंद, ठोक बजा के वो कहता था वो आर्या धर्म को मैंने खत्म कर दिया। ओ खत्म हो गया जी, ला आर्या तो लभेगा किधरे कोई नहीं। अच्छा, आर्या और ईसाई मिर्जे कादियानी की वजह से ज्यादा हो गए हैं, और पहले से भी ज्यादा हो गए, और यही काम मिर्जा जूनियर जेल घर बह के ही मैंने ये कर दी है। पागल जिया ना हुए। ये सुप्रीम कोर्ट ने फिर अकलियतों के हकूक का वहां पे लिखा, और ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई, दीन कबूल करने के मामले में किसी पे जबर नहीं है। अल्लाह ताला ने हदायत को गुमराही से अलग करके बयान कर दिया है। अब जिसकी मर्जी है वो हक का रास्ता कबूल करे, बिल्कुल यही है। लेकिन हम कब ये कह रहे हैं कि कादियानियों को गन पॉइंट पे इस्लाम में दाखिल किया जाए? बिल्कुल नहीं। मैं तो बरेलवी देवबंदी अहले हदीस के हक में भी नहीं कहता कि गन पॉइंट के ऊपर उन्हें कोई इस्लाम की कोई तबलीग की जाए। लो जी, आगे खोती बोर्ड थले, लो जी, भाभी देवबंदी शिया भी जो है ना, उनको भी इस्लाम की तबलीग करनी है। हाँ, जिस किस्म की तबलीग कादियानियों को करनी है ना इस्लाम की, वैसी ही तबलीग देवबंदी भाभीियों को भी इस्लाम की तबलीग कर, लेकिन इस्लाम की तबलीग करनी है। देख लिया आप लोगों ने, तबलीगें दोनों तरफ एक ही हैं, और कादियानी भी काफर, तो ये देवबंदी भाभी सुन्नी शिया भी काफर, सारे काफर। और बच गया एक मुसलमान मिर्जा जूनियर जेल में, बस। समझ आई कि नहीं आई कोई कहानी दी? आगे सुनो। और रहे कादियानी, तो उन्हें तो हम वैसे ही नॉन मुस्लिम समझते हैं, उन्हें भी हम दावत देंगे, तो इसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं। फिर एक और आयत उन्होंने उस फैसले में कोट की, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक इस ज़िक्र कुरान को हमने नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और इससे वो ये प्ली लेना चाह रहे थे काजी साहब के, आपको कुरान की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली हुई है, लिहाजा अगर कादियानी इस तरह का गुमराहकुन तर्जुमा बांटते हैं तो कोई मसला नहीं है। भाई अगर यही आपका कानून मान लिया जाए तो अल्लाह ताला ने तो कई चीजों की जिम्मेदारी ली हुई है, लेकिन अल्लाह ताला उन चीजों की एग्जीक्यूशन कैसे करवाता है? वो तो बाबों के जरिए करवाता है ना, कि मिर्जा जूनियर जेल भी तेरे जरिए करवाता है। बाबों की तो दुकानें बंद हो गई है, और बाबे ते मुशरक ने, उन्होंने तो खुदाई कोई और है। हिफाजत जो है वो तो फिर बाबे कर रहे हैं, तो जिनको तो तू मुशरक बना चुका है, तो फिर मानना पड़ेगा दो ही बाबे बच गए हैं दुनिया के अंदर मुसलमान, एक मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी, एक मिर्जा जूनियर जेलम वाला है। और तुम लोगों ने अब कुरान की हिफाजत करनी है, हैं? पहली हिफाजत मिर्जा सीनियर ने की, और दूसरी हिफाजत मिर्जा जूनियर जेलमी कर रहे। मौत का भी एक वक्त मुकर्रर है, हमने सिक्योरिटी गार्ड्स क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि दुनिया को अल्लाह ने बकदरे एफर्ट छोड़ा हुआ है, असबाब के साथ मामला को जोड़ा हुआ है। ये उम्मत की जिम्मेदारी है कि कुरान हकीम के ऊपर जब हमला होगा, उम्मत उस हवाले से कंट्रीब्यूट करेगी और कुरान पाक की हिफाजत के लिए अपना तन मन धन लगाएगी। रसूलुल्लाह के बारे में कुरान में है, इन्ना कफैनाकल मुस्तहज़िईन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जो मजाक उड़ाने वाले लोग हैं ना। हाँ, एक मिनट, ठहरी, रोला हो गया, कोई थोड़ा जा रोला हो आएगी। रसूलुल्लाह के बारे में कुरान में है, इन्ना कफैनाकल मुस्तहज़िईन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको कफायत कर देंगे उनके मुकाबले पर। तो क्या इसका मतलब कोई आयत का ये लेगा कि अगर रसूलुल्लाह की कोई गुस्ताखी करे तो अल्लाह ताला खुद बदला ले लेगा और हमने कोई कानून एग्जीक्यूट नहीं करना उसके ऊपर? ये उसे नहीं समझाना? कितनी नॉनसेंस बात है। तो दुनिया में कानून इसीलिए बनाए जाते हैं ना, अल्लाह ताला ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा हुआ है। बहरहाल इसमें उनके लिए भी लम्हा फिक्री है जिन्होंने सदियों से हमें कहानियां करवाई थी कि हमारे बुजुर्ग निगाह मार के ये कर देते थे, वो कर देते थे। वो हमारे हाकिम रिजवी साहब भी कहा करते थे ना कि जी इमाम मालिक फरमाते हैं उम्मत मर जाए, नबी ने गुस्ताखियां हो, इमाम मालिक फरमाते हैं फिर उम्मत जिंदा क्या मर जाए सारी, फिर मर जाए सारी, पूरी आलम इस्लाम इस वक्त या तो मर जाए, सारा आलम इस्लाम, या फिर हुजूर की इज्जत पर रह जाए। बस दो बातों में से एक बात है, बस या सारा कटा के मर जाए या फिर फ्रांस को जवाब दे।
फिर इमाम मालिक फरमाते हैं कि उम्मत मर जाए कि नबी की गुस्ताखियां हो रही है और उम्मत कुछ नहीं कर रही उन गुस्ताखियों को रोकने के लिए। तो मैंने कहा था बाबा जी सब्र करो, पहले तेरे गोश्त को तो दाल क्यों ना मर जाए, कुत्ता नहीं बहुत मर जाए।